BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کے جو مطالبات مانے تھے ان پر آج تک عمل نہیں ہو سکا. اس تحریک کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں فوج کا انٹریکشن بڑھانا چاہیے, لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے الزامات کا جواب دینے کے لیے روس کو برطانیہ کی طرف سے منگل کی رات 12 بجے تک کی مہلت. اور دیکھیے گا کہ کیسے لبنان میں ایک غیر سرکاری تنظیم خوشی کے موقعوں پر فائرنگ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار راؤ انوار کو گرفتار نہ کیے جانے کے علاوہ حکومت نے ان کے جو مطالبات تسلیم کیے تھے 1 مہینے کا وقت گزر جانے کے باوجود ان پر بھی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار خدائے نور ناصر نے تحریک کے بانی اور روح رواں منظور احمد پشتین سے تفصیلی گفتگو کی اور پہلے تو یہ پوچھا کہ اتنے مختصر عرصے میں ہزاروں پشتون ان کے ساتھ کھڑے کیسے ہو گئے. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. لوگوں کا مطلب اس کی زندگی جو تھی وہ اجیرن بن چکی تھی. میں ایک دفعہ چکملائی کے علاقے میں گیا, وہاں کرفیو میں بہت ظلم ہوا تھا. وہ تیسرا دفعہ تھا اسی 2 مہینے میں کہ ان پر بہت تشدد وغیرہ. تو جب میں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یار کیوں نہ آپ لوگ بات کریں, اٹھیں اس کے خلاف, تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے پاس آپ مت آئے منظور, ہم ایک دعا کرتے ہیں, آپ آمین کریں صرف. سب نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا یا اللہ قیامت کو آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہے, کیوں نہیں آتا ہے کہ ہم سب برباد ہو جائیں تاکہ یہ جو زندگی سے جان خلاصی ہو جائے. آپ نے جو مطالبات وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کیے تھے یا رکھے تھے اس پر کوئی عمل درآمد ہوا؟ ایکسٹرا جوڈیشل کمیشن کی تو بالکل بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے, لاپتہ افراد کے حوالے سے پیش رفت بہت ہی تھوڑا ہوا ہے, آٹے میں نمک کے برابر. تو باقی جو مائنس کا ہے, ساؤتھ وزیرستان میں مائنس کی صفائی جاری ہے. ساؤتھ وزیرستان کے لوگ اس چیز سے خوش ہیں. نیک محمد سے لے کر حکیم اللہ محسود تک قبائلی علاقوں کے شدت پسند نوجوانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بات ہو رہی ہے کہ اس علاقے میں تعلیم نہیں تھا, روزگار نہیں تھا, اس وجہ سے شدت پسندی کی طرف مائل ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا یہ 1950 اور 1960 کے درمیان تو اس سے بھی کم تعلیم یافتہ تھے ہمارے لوگ, اور روزگار کے لحاظ سے بھی بہت کمزور لوگ تھے. اس وقت ہم کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ یعنی کہ آپ کے خیال میں کسی اور نے ان کو شدت پسند بنایا؟ ریاست نے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے. پاکستان کے جو ادارے اس نے اور کام بالکل چھوڑ دیا تھا, یہی اس چیز کو فروغ دے رہے تھے. جس دن ہم پر توپوں اور جیٹ یانوں سے بمباری میں اس کا فائدہ ہو اس دن وہ کام کرتے ہیں. جس دن لوگوں کو راشن دینے میں اس کا فائدہ اس دن راشن دیتے ہیں. جس دن ان لوگوں سے کسی اور کو مارنے کی اس دن وہ کرتے ہیں. یہ تقریباً اس طرح ہے کہ ان علاقوں کو انہوں نے بالکل وزیرستان پر قبضہ کیا ہوا ہے. آپ جا سکتے ہو وزیرستان؟ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کسی کا قبضہ ہے وہاں اور ان لوگوں کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے. یہ جو آپ بڑی سنگین الزامات لگا رہے ہیں نا فوج پر, صحیح آپ کہتے ہیں حقائق ہے, وہ خود ہی کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں, تو الزام کیا ہے؟ یہ تو وہ خود مان رہے. پشتون تحفظ موومنٹ کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہاں پرامن رہے گا. یہ حکمرانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کا کیا رویہ ہے. وہ اپنے ظلم کو مانتے ہیں, ہمیں شہری سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے جو خون بہایا گیا ہے اس کو وہ مانتے ہیں, نہیں مانتے, تسلیم اس سرے سے نہیں کرتے, یا ویسے ہمیں فضول ٹیشو پیپر کی طرح بس استعمال کیا ہے. ان کی طرف سے تو ابھی تک رکاوٹیں ہیں, ہماری طرف سے تو نہیں ہے. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پشاور میں سینئر صحافی اقبال خٹک سے بات کی اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ قبائلی علاقوں میں فوج کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف آوازیں تو کافی عرصے سے سنائی دے رہی ہیں, اب یہ جو ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ
हमारी मीडिया ने इन इल्ज़ामात की खुद छानबीन नहीं की है। बदकिस्मती से मैं भी इस मीडिया का हिस्सा हूँ। इस स्टोरी को मैंने भी कवर किया है, लेकिन इस स्टोरी को हमने इंसानी पहलू को मद्देनज़र सामने नहीं रखा है। हमने सिर्फ दो पहलुओं पे ज़ोर दिया था, एक फ़ौज थी और दूसरी तालिबान, और इनके दरमियान जो आवाम थी और आम लोग थे जो तकलीफ़ात ज़्यादातर बर्दाश्त कर रहे थे, उनके हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात हो सकते हैं। जैसे आप जानती हैं कि कबायली लोग इस दहशतगर्दी से पहले उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ थी, लेकिन इस दहशतगर्दी ने उनकी ज़िंदगी को तकरीबन 180 दर्जे मुख्तलिफ बना दिया है। और यही वजह मैं समझता हूँ कि मीडिया ने इस चीज़ को पहलू को नामद्देनज़र रखते हुए और ये मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि वो अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अच्छा, ये जो ये तहरीक है, इसमें जो कबायली इलाकों में फ़ौजी चेक पोस्ट हैं उन पर बहुत एतराज़ किया जाता है। उनको वहाँ से हटाना कितना अहम है किसी भी तरह के प्रोग्रेस या किसी भी तरह के मस्बत एक पेशरफ्त के लिए? ये बहुत ही मुश्किल है न सिर्फ लोगों के लिए कि ये चेक पोस्टें हटें, बल्कि फ़ौज के लिए भी शायद मुश्किल हो कि वो इन चेक पोस्टों को हटाए। दरअसल मेरे ख़्याल में जो असल मसला मुझे नज़र आ रहा है वो है कि हुकूमत ने लोगों को एक किस्म की तालीम नहीं दी है कि ये चेक पोस्टें किस मकसद के लिए हैं। दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि फ़ौज ने इस पहलू को, इस चीज़ को देखा नहीं है कि ये जो चेक पोस्टें हैं ये मकामी लोगों के कल्चर या उनके रहन सहन के तरीके या उनकी जो कोड ऑफ लाइफ है उसके साथ कितनी कंपैटिबल है या कितनी मिलती हैं या उनसे कितनी जुदा हैं। ये एक बड़ा मेरे ख़्याल में एक कल्चरली इशू बन गया था कि कबायली लोग कभी भी ज़िंदगी में रोड पे किसी को उसने रोका नहीं है और आप एकदम आके रोड पे खड़े होके उनको रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और कभी कभी तो आप घंटों घंटों उनको वहाँ इंतज़ार कराना पड़ रहा है। सो दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख़्याल में पहल इस सारे मसले में अगर किसी ने पहल लेनी है वो फिर फ़ौज है। फ़ौज किसी न किसी तरीके से एक तरीक़ेकार अपनाए ताकि उनका मकसद भी हासिल हो, जो कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना हुआ है। दूसरा जो है आम लोगों की मुश्किलात को कम करना हो। तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके में या इन इलाकों में जो फ़ौजी अफसर या अहलकार तैनात हैं वो अगर अपना रवैया बेहतर करें तो उससे मसले का हल हो सकता है, या फिर जब तक इन इलाकों से फ़ौज का मुकम्मल इनखला नहीं होता तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? मेरे ख़्याल में उनकी रवैये में तब्दीली पहले की बनिस्बत मैं देखता हूँ कि कुछ आई है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश अब भी मौजूद है। लोगों के साथ मेरे ख़्याल में फ़ौज का इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, और हुकूमत और फ़ौज दोनों लोगों को बताना चाहिए कि इन चेक पोस्टों की मौजूदगी में उनकी ज़िंदगी को कितनी अहमियत है, या ये चेक पोस्ट ना हो तो दहशतगर्दी का दोबारा आना कितना मुमकिन है या नामुमकिन है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मेरे ख़्याल में जो अहम सवाल है वो लोगों की नक्ल व हरकत पे जो आयद पाबंदियाँ हैं उनमें नरमी लानी चाहिए। अगर दहशतगर्दी 50 से 60 या 70% कम हो गई है तो एटलीस्ट हम 10%, 15%, 20% जो नक्ल व हरकत पे पाबंदियाँ हैं उनमें कमी तो ला सकते हैं। ये थे सीनियर सहाफ़ी इकबाल खटक। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। बरतानिया में एक साबिक़ रूसी जासूस और उनकी बेटी को जहर देने के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए रूस को बरतानिया की तरफ से मंगल की रात 12 बजे तक की मोहलत दी गई है। सरगेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी को आसाब पर असरअंदाज होने वाली गैस से निशाना बनाया गया और इसके बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे के मुताबिक वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। तफसील के साथ फराज हाशमी। एक सुपरमार्केट का कार पार्क जिसे एक मोहल्लित मवाद के बारे में तहकीकात की वजह से बंद कर दिया गया है। बरतानवी शहर सेल्सबरी में सैकड़ों पुलिस एहलकार इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने रूसी जासूस को जहर दिया। सरगेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी जूलिया की हालत अभी भी तशवीशनाक है। उन्हें आसाब को मुतासिर करने वाली गैस से हलाक करने की कोशिश की गई। हमें इल्म है कि नोहिक नामी गैस रूस ने बनाई थी। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने रूस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ये वजाहत करें कि ये कैसे हुआ या फिर इसके नताइज भुगतें। या तो ये हमारे मुल्क पर रूस का बराह रास्त हमला है या फिर इस इंतहाई मुहलिक मवाद पर रूसी हुकूमत की गिरफ्त ढीली पड़ गई है और उसने इसे दूसरे अनासर के हाथ लगने दिया है।
रूस के सफ़ीर को जवाब देने के लिए मंगल की रात तक की मोहलत दी गई है। रूस इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बारे में सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। हम इस वक्त ज़राअत को ठीक करने में मसरूफ़ हैं ताकि लोगों के हालात ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके, और आप किसी सानहे की बात कर रहे हैं। पहले ये तो मालूम कर लें कि आखिर हुआ क्या है, फिर हम इस पर बात करेंगे। रूस से किसी मुनासिब जवाब न मिलने की सूरत में बरतानी हुकूमत का कहना है कि वो रूस के खिलाफ इक़दाम करेगी, लेकिन वो रूस के खिलाफ कहाँ तक जा सकती है और क्या उसे इस मामले पर दूसरे मुल्कों की हिमायत हासिल होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस वाक़े की मजम्मत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने इसे संगीन वाक़या करार देते हुए कहा कि अगर रूस की हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं भी है तब भी ये रूस ही की हरकत मालूम होती है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बयानात किस हद तक काफ़ी हैं, लेकिन रूस और बरतानिया के दरमियान ये मामला एक बहरान की सूरत इख्तियार कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन को उनके ओहदे से हटा दिया है और उनकी जगह अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह माइक पोम्पेयो को वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में तब्दीलियों का ऐलान एक ट्विटर पैगाम के जरिए किया। माइक पोम्पेयो की जगह उनकी नायब जीना हैस्पेल को CIA का सरबराह मुक़र्रर कर दिया गया है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म रामी हमदल्ला गज़ा में कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। उनका काफ़िला गैर मामूली दौरे पर जैसे ही गज़ा की पट्टी पहुंचा, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस धमाके का बराह रास्त इल्ज़ाम हमास पर नहीं डाला, ताहम इसकी जिम्मेदारी उन्होंने हमास पर ही डाली है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, शादियों में हवाई फायरिंग के खतरात से आगाही के लिए लुबनान में एक अनोखी मुहिम, और आपको दिखाएंगे किर्गिस्तान का एक अनोखा खेल जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान की ही तरह दुनिया के कई मुआशरों में और ख़ास तौर पर अरब ममालिक में खुशी का इजहार अक्सर बंदूकों से हवाई फायरिंग करके किया जाता है। ताहम जो चीज़ ऊपर जाती है उसका नीचे गिरना भी कुदरती है और इसके असरात अमूमन ख़तरनाक होते हैं। लुबनान में एक गैर सरकारी तंजीम की कोशिश है कि खुशी मनाते वक्त गोलियाँ चलाने वाले इसके नताइज के बारे में भी सोचें। तफसील के साथ सना गुलजार। गोलियों की बौछार और फिर रक्स में महव। अरब दुनिया में खुशी के मौक़ों पर हवाई फायरिंग करके खुशियां मनाना रिवाज का हिस्सा बन गया है। लबनान में शादियों की तैयारियों के बारे में सबसे बड़े कारोबारी मेले में एक गैर सरकारी तंजीम भी शामिल हुई। हवाई फायरिंग के ख़िलाफ़ आगाही बढ़ाने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढा। यहाँ हम लोगों को बताते हैं कि वो अपनी मर्जी से बंदूक चलाने वाले का इंतखाब कर सकते हैं। गन कौन चलाएगा, कौन सी गन इस्तेमाल होगी, कैसे कपड़े पहने जाएंगे। जब लोग ये तमाम फैसले कर लेते हैं, फिर हम उन्हें अपनी मुहिम के बारे में बताते हैं। अगर गोली आपकी किसी अजीज को लग जाए, मगर वो तो दूर खड़े होंगे ना, आपको नहीं लगता कि किसी को गोली भी लग सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम सब ही हवाई फायरिंग करते हैं। मैंने पूछा कि अगर गोली आपकी बेटी को लग जाए, तो जवाब आया कि खुदा की मर्जी है। अहमद इब्राहिम एक इलेक्शन रैली में हवाई फायर में अंधी गोली लगने से हलाक हुए। एक अंधी गोली ने मेरे बेटे की जान ले ली। वो 5 बजे घर से निकला था फुटबॉल खेलने के लिए। एक अंधी गोली की वजह से मुझे अपने 17 साल के बेटे को दफन करना पड़ा। मेरे बेटे की अंधी गोली से हलाकत खुदा की मर्जी नहीं थी, हरगिज़ नहीं। अहमद सिर्फ 17 साल के थे और उनके वालिदैन का क्लिप मेले में शादी में हवाई फायरिंग की तैयारी करने वाले अफराद को दिखाया गया। वीडियो देखने के बाद लोगों से उनका रद्द अमल जानने की कोशिश की गई। मुझे शूटिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद मैं शूटिंग नहीं करूंगा। गोलियां चलाने का तरीका होता है, ऐसे ही थोड़े कि बस गोलियां चलाना शुरू कर दी। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे समझ आ गई है। इस वीडियो ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसने मेरी सोच को मुतासिर किया। ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए।
मुहिम चलाने वाले इदारे के मुताबिक मेले में 1500 जोड़ों ने हवाई फायरिंग ना करने का वादा किया। और अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने पाकिस्तान की अहम समाजी और सियासी शख्सियात के साथ BBC उर्दू के खुसूसी इंटरव्यूज़ पर मबनी एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। किर्गिस्तान के लोग कॉकबारू नामी रवायती खेल से इंतहाई लगाव रखते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या खेल है तो बस ये सोचिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन घोड़ों पर बैठकर, और फुटबॉल की जगह मैदान में बछड़ा या बकरी है। BBC किर्गिज सर्विस ने ये रिपोर्ट बनाई है जिसे पेश कर रहे हैं आदिल शाहज़ेब। अजामत का ताल्लुक वैसे तो जनूबी पहाड़ी इलाके अलाई से है, लेकिन अब वो बिश्केक में रहकर घोड़ों की तरबियत करते हैं। मैं 7 साल कबल बिश्केक आया और कॉकबोरो खेल के लिए आला नस्ल के घोड़े ट्रेन करता हूँ, जिनमें से कुछ घोड़े बाहर के ममालिक से लाए जाते हैं। हम खेलों में बड़े इनामात जीतते हैं। बड़ी इनामी रकूम को देखकर अब आला किर्गिज कारोबारी अफराद और हुकाम भी कॉकबोरो के लिए घोड़ों की खरीदारी और तरबियत पर अच्छी खासी रकूम खर्च करते हैं। कॉकबोरो के साबिक खिलाड़ियों का कहना है कि ये खेल अब बड़े पैमाने पर खेला जाता है, इसलिए इनामी रकम अब आसमान से बातें करने लगी है। पहले हम चाय की पत्ती का डब्बा जीतने के लिए खेलते थे, लेकिन अब इनाम में गाड़ियाँ, ऊंट और घोड़े मिलते हैं। ये खेल इस वक्त सख्त सर्दी में खेला जा रहा है। दर्जा हरारत -28 डिग्री है। खिलाड़ियों और घोड़ों के मुंह से निकलने वाली भाप से लगता है जैसे यहाँ आग लगी हुई है। इस वक्त हम बछड़े के साथ कॉकबोरो खेल रहे हैं, जिसका वजन 60 किलो से ज्यादा है। ये इंतहाई खतरनाक खेल है। खिलाड़ी नीचे गिरकर कुचले जा सकते हैं। अपने घुटनों की हिफाजत के लिए खुसूसी बूट तैयार करवाते हैं और फिर बूटों के नीचे भी हिफाजती तय होती है। हाथों की हिफाजत के लिए भी दस्ताने पहनाए जाते हैं। दारुल हुकूमत बिश्केक में कॉकबोरो इस खेल के लिए मुख्तस इलाकों में ही खेला जाता है, लेकिन देहाती इलाकों में ये रिवायती खेल इतना मकबूल है कि तकरीबन हर जगह खेला जाता है। पहले लोग इस खेल से लुत्फानंदोज होने के लिए शहर से देही इलाकों का रुख करते थे, लेकिन अब देहातों के लोग शहर आकर इस खेल में हिस्सा लेते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।